ओके, सो मैंने क्या कहा है आपको कि मैं आई विल टेल यू पीस ऑफ राइटिंग एंड वी विल डू इट, वी विल कंप्लीट इट इन 3 rounds. First you will listen to it carefully, and if possible you may write down the points. Then I will repeat it second time, and by now much of the much part of it would have been clear to you. So now you will start to write down the notes, the points. Then I will tell you third time, and then you will edit it if there is any need of writing any points may that you may miss in the first time or second time, you may complete it. So now focus on my listening. So this way you will improve your listening, and when you will make notes or make when you will write down the important points of the part of it, it would be your note making, and then I will ask you some questions regarding the matter. Okay, and in the fourth attempt you will write down a summary. I will tell you the words that I will tell before you, and the summary must be in 1/3 of the total length of any passage. Okay, so now start listening carefully. Of all the trees of southern Asia, लिख सकते हैं आप, कुछ आपको समझ में आ रहा है तो, the banyan tree is unique not only for the manner of its growth but for the area of shade it provides from the burning sun. ठीक है ना, you may write down साउथ एशियन ट्रीज, फिर आप आगे डाल सकते हैं बैनियन ट्री, फिर आप एक पॉइंट ले सकते हैं बैनियन ट्री यूनिक, फिर आप ले सकते हैं एक पॉइंट इसका ग्रोथ, एक यही है ना, नॉट ओनली फॉर द मैनर ऑफ इट्स ग्रोथ, तो खाली ग्रोथ भी आप लिख देंगे तो भी चल जाएगा, बट फॉर द एरिया ऑफ शेड इट प्रोवाइड्स फ्रॉम द बर्निंग सन, तो यू कैन राइट डाउन शेड गिवन बाय इट, है ना, तो शेड आ गया तो फिर यू नीड नॉट मेंशनिंग बर्निंग सन, है ना, समझ रहे हैं ना आप कुछ चीजों को, ऐसे अंडरस्टैंडिंग अपनी आप अच्छे से करो. और इट्स क्लोज रिलेशनशिप विद मैन हैज इवॉल्व्ड ओवर द years to make the Banyans a most popular meeting place. So you can write down relationship with man, popular meeting place आ जाएगा, समझ जाओगे आप इतना. A focal point of worship, this is the second point of its relationship with human being. And the third point source of, अब उसमें लिख दो worship, लिख दो खाली, समझ जाओगे आप. Then a source of practical materials for commerce, it is clear, material for commerce, it is enough, source तो है ही है वो. थोड़ा दिमाग को फोकस करोगे ना, when you try to focus your mind on the topic. Now I think by listening these words, the topic or the title of the passage is clear to you. Now it is up to you to write down the title of the passage, now known as the strangler fig because of its unusual manner of growth. लिख सकते हैं आप थोड़ा सा, strangler fig known as the because of its unusual manner of growth, तो अनयूजुअल ग्रोथ लिख दीजिए खाली आप, अनयूजुअल मैनर ऑफ ग्रोथ लिख दीजिए. द बेनियन इज एन एपिफाइट ऑफ एयर प्लांट, है ना, और ऑफ नहीं है, द बेनियन इज एन एपिफाइट लिख सकते हैं आप, और एयर प्लांट, एपिफाइट इज द सिमिलर ऑफ एयर प्लांट, दैट हैज इट्स बर्थ इन द ब्रांचेस ऑफ अ होस्ट ट्री, तो लिख दीजिए बर्थ, फिर आप लिख दीजिए होस्ट ट्री, ब्रांच लिख दीजिए आप, सॉरी
बर्थ, ब्रांचेस, होस्ट ट्री, बस कल क्लियर हो जाएगा। एंड लिव्स एन एयरबॉर्न, लिव्स ऑन एयरबॉर्न मॉइस्चर, तो लिव्स एयरबॉर्न मॉइस्चर कर दीजिए, एंड न्यूट्रिएंट्स। Banyan seeds are deposited by birds, bats, or monkeys in the rich soil, collected in the crevices of the host tree branches. तो आप लिख दीजिए कि banyan trees deposition, आगे लिख दीजिए birds, bats, monkeys, इतना ही काफी है। In the rich soil collected in the crevices of the host tree branches. क्रेविसेस को आप क्लियर कीजिए, जो ब्रांचेस होती हैं पेड़ की, उनमें ऐसी दरार सी कई बार आपको दिखाई देती है, उनमें भी धूल मिट्टी जम जाती है, समझ गए आप? तो वहां से ये हो जाते हैं, ये बीज जो होते हैं इसके, दैट आर लेफ्ट बाय दिस। तो अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर इसकी, है ना, आप सुनिए आप इसमें क्या है। पहले मैं अगर इसकी बात करूं तो तीन पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट पार्ट इज द फीचर्स ऑफ बैनियन ट्री, उसके लक्षण क्या होते हैं, है ना, द यूनिकनेस ऑफ बैनियन ट्री। तो एक तो क्या करेंगे अपन इसका, एक नीचे आप पॉइंट लिख सकते हैं, मैनर ऑफ ग्रोथ बता ही दिया मैंने आपको, और एक इसका दूसरा आ रहा है शेड गिविंग बाय इट, ये भी हो गया ना क्लियर, आपको दो ही बातें आई ना। यूनिक होता है ये, दिस इज अ यूनिक ट्री, क्लियर हो गया, बिकॉज ऑफ इट्स टू थिंग्स, वन इज इट्स ग्रोथ एंड द अदर वन इज द शेड प्रोवाइडेड बाय दिस। इतना काफी है, शेड आ गया तो बर्निंग सन लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे डेवलप आप इसको कर सकते हो। रिलेशनशिप बिटवीन मैन, अब एक हेडिंग डाल दीजिए आप ऊपर, रिलेशनशिप विद मैन। अब उसके नीचे आप लिख सकते हैं रिलेशनशिप क्या है इसका मैन के साथ में, एक तो मीटिंग प्लेस, दूसरा वर्शिपिंग प्लेस, एंड द थर्ड वन इज मैटेरियल फॉर बिजनेस या फॉर कॉमर्स। ये क्या लिखवाया था पॉइंट अपन ने, रिलेशनशिप विद मैन, क्लियर हो गया ना आपको? हो गया ना? अच्छा, इसके बाद आप आ जाइए, कैसे, ये क्या कहलाता है कि नॉन एज द स्ट्रैंगलर फिग बिकॉज ऑफ इट्स अनयूजुअल मैनर ऑफ ग्रोथ। तो आप लिख सकते हो नॉन एज स्ट्रैंगलर फिग, वाई, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोथ मैनर, है ना। फिर आप लिख सकते हैं कि एपिफाइट, नीचे एक पॉइंट डाल करके, अब एपिफाइट क्या होता है उसके बारे में आप लिख दीजिए, क्या होता है एपिटाइफ उसके बारे में आप लिख दीजिए, बर्थ इन द ब्रांचेस ऑफ होस्ट ट्री, ठीक है ना, और हाउ टू लिव, अब ये भी तो एक बात आएगी ना, हाउ टू लिव, कैसे जिंदा रहता है ये, ऑन एयरबॉर्न मॉइस्चर लिखा होगा शायद आपने, एंड न्यूट्रिएंट्स। चलो इतना हो गया। अब इसका आप लिख सकते हो कि सीड्स, द डिपोजिशन ऑफ सीड्स किस किस के द्वारा होता है, नीचे लिख दिया बाय बर्ड्स, बैट्स और मंकीज, है, कहाँ होता है ये, वेयर, इन द क्रेविसेस ऑफ द होस्ट ट्री। समझ गए मेरी बात को आप? ये आपका छोटा सा हो गया, आपने नोट्स बना लिए होंगे अपने अपने, बताओ जरा अच्छा क्या क्या बनाया आपने, वैसे मैंने बता दिया आपको, कोई बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम, मैं आपको वर्ड बताऊंगा, कितने वर्ड्स में आपकी समरी आनी चाहिए, पॉइंट्स अपने आ गए हैं ना, जस्ट अ मिनट।
अबाउट 30 वर्ड्स के अंदर आप इसकी समरी लिख के दिखाओगे मेरे को। अभी फटाफट से लिखना शुरू कर दो। अबाउट 30 वर्ड्स। ओके, कम ज्यादा हो तो होने दो, आप देखेंगे बाद में, एक दिन में नहीं आएगा ना, दिस इज अ स्किल। कोई दिक्कत है मेरे से पूछो आप, थोड़ा सा स्पीड लाओ, बस माइंड चलाओ अपना, कितना फोकस आप कर सकते हो। लैंग्वेज सर आपकी, यूनिक लैंग्वेज की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? किसकी? यूनिक। द मोस्ट यूनिक। ओके सर। कितना आप फोकस करोगे, कितना इंटरेस्ट लोगे, उस पे आ जाएगा। ग्रामर आपको मालूम है, लिखना आपको आता ही है, पॉइंट्स को उठाओ और सेंटेंस लिखते चले जाओ। प्रेजेंट टेंस को यूज करना है आपको, प्रेजेंट टेंस ही तो यूज होगा ना। अब कैसे आपको जोड़ तोड़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं, सारे पॉइंट आ जाएं, नॉट मोर देन 30-40 वर्ड्स। हम्म, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ आपने सीखा है अभी तक, जो राइटिंग स्किल्स आपकी डेवलप हुई है, अब आपको उसको डेवलप ही तो करना है यहाँ पर, और क्या करना है। 30 के 40 भी हो जाए तो कोई बात नहीं, 50 भी हो जाए तो कोई बात नहीं, घबराओ मत आप। समझ गए ना? कोई दिक्कत है तो पूछ लो मेरे से। चलो बोलो। हर्षित सेकंड बोलना जरा, कितने वर्ड्स हैं सर पहले बताओ, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? सर आपका नहीं हुआ। हाँ, जो नहीं हुआ उसको कर लो आप। हाँ The 56. ओके, बोलो जरा, बोल के सुनाओ एक बार। In the southern Asia, banyan trees grows in large area grows large in area and so big shade. The relationship with man evolves for meeting place, worship, source of material of commerce. Because of its growth manner known as strangler fig. हम्म Epiphyte is known as the bird of branches, as the birth of banyan trees. हम्म On other side, हम्म the deposition of seeds collected by birds, bats, and monkeys are known as crevices. हम्म, Sudden. ठीक है। और स्पर्श बोलना जरा। 51 words. 51 वर्ड्स है, ओके, बोलना जरा। Banyan tree of southern Asia is unique for its manner of growth and shade provided by it. It हाँ is popular for meeting and worship point and have relationship with human by providing material. It is an epiphyte plant, हाँ। birth in हम्म branches of host tree. Deposition of this tree is done by bat, monkeys, birds. It lives on airborne moisture and nutrients. वेरी गुड। हाँ, किसका हुआ है और फटाफट फटाफट से बताओ। हाँ बोलो रोहित। सर मेरा। हाँ, रोहित बोलो। सर रोहित का। हाँ हाँ बोल। रोहित। हाँ हाँ रोहित, इतना यस क्यों सर। कंफ्यूज रहता है तू? हाँ 66। 66, चलो कोई बात नहीं, बोल। In South Arabian trees
हाँ, There इसने is ध्यान a से, इसके सुनने की प्रॉब्लम है, इसकी सुनने की प्रॉब्लम है। Asian. एशिया बोला था, लेकिन ये अरेबियन, इनका सुनने का अलग ही रहता है, इनका दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। In South Asian trees, there is a banyan tree which is unique because of manner of its birth, the relationship of it with man is a popular meeting places and focus point of worship. हम्म It is also known as stranger because of its growth. Banyan is an amplified or air plant. हाँ, It lives by moisture and nutrients. Bats and monkeys are the crevices of the host tree branches. हाँ, और देखना, अभी इसको चेक करना, मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। हाँ, अब किसका है? हर्ष। Yes, sir, 55. हाँ बोलो। The banyan tree is the most unique tree in the South Asian area. Its relationship with humans is good. It is a worship place of humans. It is a famous. It is famous by its growth. It is a unique tree. It is known as the string by its growth. It lives by moisture and nutrients. Birds, monkeys, and bats deposit seeds. हाँ, और किसका हुआ? रक्षित। सर मेरा हाँ, yes sir sir 61 ओके। yes sir many trees found in southern Asia. The most unique tree is the banyan tree. It provides shade. It has a close relationship with man, like it is a meeting place, a worship place, and it provides material for commerce. वेरी गुड। It is also known as a strangler fig. It lives on airborne moisture. Its seeds its seeds are deposited by monkeys, birds, and bats. Sir, that's it. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, हर्षित फर्स्ट। Yes, sir. Banyan tree is grown in southern Asia. Sir, मेरा है 50 words. 50 वर्ड्स, हाँ ठीक है। Banyan tree is grown in the southern Asia. It is unique for its manner of growth and area of shade. Its close relationship for man is that popular meeting place, a focal point of worship, material for commerce. It is epiphyte of air. Banyan seeds, deposition, birds, bats, and the monkeys known as carvivensius. सही क्या था इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? क्रेविसेस। क्रेविसेस हो गया था। ठीक है, निशा। Yes, sir. 37 words हैं. ओके। Banyan tree is a unique in Southern Asia, not only for its growth but also uh, area of shade. It it provide it is provide इस meeting क्यों लगा place. रही है? इट प्रोवाइड से तो आएगा क्या? हाँ, ग्रामेटिकल sorry, मिस्टेक रही है। it provide meeting, worship place, and materials for commerce. It is also known as slugger fig um, for its growth. Birds and monkeys deposit seeds. It breathes in the branches in the hot trees. हॉट That's नहीं, it. होस्ट। Host. ओके, ठीक है। हाँ, इच्छा Yes, sir. 40 words. बोल। The banyan tree is very famous tree in South Asia. हाँ, The banyan tree's growth is very unique to compare the other tree. It has close relationship with man. It provide meeting place, focal point of worship, and material for commerce. It is also known as, सर आपने कोई नाम बताया था, स्ट्रैंगलर हाँ, स्ट्रैंगलर सही है। स्ट्रैंगलर ट्री फिग, स्ट्रैंगलर फिग। और banyan tree deposition by birds and monkey. ठीक है, बहुत बढ़िया। अब टाइटल तो किसी ने बताया ही नहीं मेरे को इसका, एक ने भी।
Banyan tree होगा टाइटल इसका, देख लो आपका कितना Yes, sir. पास में है कितना दूर है. Yes, Now I'm sir. asking some questions to you. Which tree is being discussed here? Fig, pine, acacia, banyan. Icha. Banyan. Very good. What makes it unique? Options: its roots, its leaves, its fruit, its area of shade. Harsh. Its area of spread. Very good. How can we say that it has close relationship with man? Rohit. Sir, by popular meeting. Popular meeting. Yes, sir. बस. हर्षित सेकंड. And worshipping. और यही तो बात है ना, फोकस कहाँ है अब तुम्हारा? यस, ठीक है तुम्हारा, काफी ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से बना के बोलना चाहिए सेंटेंसेस में. हर्षित सेकंड. Yes, sir. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. We can say banyan tree has close relationship with humans as we can do worship under it. We can do meetings and material for commerce. We can do Commercial. meeting under it and we can get material for commerce. ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. What is the similar word of narrow cracks? Narrow cracks मैंने समझाया भी आप लोगों को. रक्षित. Sir, strangler. Sir, amplified. हर्षित फर्स्ट. Sir, amplified. निशा. Sir, privacy. हैं? I don't know. अरे वो बोल तो सही, इतना क्या कॉन्फिडेंस लूज कर रही है, दोबारा बोल उसको. Sir, privacy. क्रेविस सेज है वो. स्पेलिंग ठीक करो. CREVICES. करेक्ट. वेरी गुड. नाउ व्हाट इज द अपोजिट ऑफ पुअर? इच्छा. Sir, poor का rich. इसमें है क्या? नहीं. जो मैंने बोला था इसमें कहीं है क्या? है. यू आर राइट. चलो कोई बात नहीं, ठीक है. पुअर का रिच है. पुअर का गरीब भी होता है और रिच का मतलब समृद्ध भी होता है. मतलब एक अलग केवल पैसे से ही मतलब नहीं होता है इसका, है ना? इसका मतलब केवल पैसे से नहीं होता है. ठीक है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच. मैं इसकी रिकॉर्डिंग डालूंगा, देखना आप इसकी रिकॉर्डिंग और चेक करना अपने आप को, जरा फिर से सुनना एक बार. और आपको क्या करना है, जो समरी आपने लिखी है ना, एक बार इसको एडिट करोगे आप. फिर से दोबारा से इसको एडिट करोगे आप. कहाँ कमी रह गई, क्या रह गई, क्या नहीं रह गई, एक बार फिर से लिखोगे आप समरी. क्लियर हो के बाद कुछ शब्द कम ज्यादा हो सकते हैं. आपकी समरी आनी चाहिए अबाउट 40 बिटवीन 40 एंड 50 वर्ड्स. थोड़ी सी कोशिश करना, थोड़ा सा और कुछ इसमें आप कर सकते हो क्या? ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? चलिए, थैंक यू वेरी जी मच. सर. आज का ये सेशन तो कंप्लीट हुआ आपका, लिसनिंग वाला और ये सारा. ओके.